So please confirm, is it audible, students? Yes, friends, please confirm, is it audible? Yes, please write in the chat box if I am audible. Okay. So let's start with today's class, friends. Uh, so today we are going to do, I will say, that is one more lecture on calendars, and that will be over for us. Okay, so we are going to take some more problems from the previous year questions, so that have come in previous year exams from calendar chapter. Okay, so I will say that in the first class and in the second class we have already discussed all the basics, all the fundamentals, all the tricks through which you can solve all the questions of calendar. So three types of questions we have discussed. One was if you were not given with some reference, I will say day, date. Okay, then how to you can find out the day. So with the help of number of odd days. So other was if you are given with some reference day, then how you can obtain that date that has been asked. Third one, that was statement type questions. Today, tomorrow, yesterday, okay, day after tomorrow, day before yesterday. Okay, so these were three types of questions. So today we are going to take some more questions. So let's proceed with some more questions now. And next time we will start with the next chapter. Okay, so this assignment I will also share with you for practice. For practice, this assignment I will also share with you. Okay, so from these questions I will say, so let's discuss question number one. So please try question number one for me, and question number three, question number three for me, and question number six for me.
So please try question number 1, 3 and 6 for me. Other questions I will give you in the link in the description of the video. You can try these. So these are some of the previous year questions. So please try question number 1, 3 and 6 for me. 1, 3 and 6. Yes, Sai. Any problem with the audio? In the description of the video, you can try. So I think that's fine. Okay, so I will say this is type 3 questions now that we are trying here. First is a day before yesterday. So like we do in the questions of age. So let's say this is today. Yesterday will be this and tomorrow will be this. Today plus one day will give you tomorrow. Okay. And today minus one will give you yesterday. Yes or no? So that is minus one. That is plus one. Now you are given with day before yesterday. Yesterday से भी एक दिन पहले Saturday है. So that means Saturday is today minus 2 is a Saturday. So in these questions, the reference for us should be today. आज क्या दिन है? Yes or no? So Saturday plus 2. So today will be Sunday, Monday. So आज क्या है? That is Monday है. Now we can read the question. So reference is Monday for us. Now what day of the week will be on after tomorrow? Okay, so this is Monday. Tomorrow will be Tuesday. Okay, after tomorrow will be Wednesday. आफ्टर टुमारो बोला ना उसने, अगर बिफोर टुमारो बोल देता तो टुडे ही हो जाता. दैट इज वेडनेसडे. सो माय आंसर विल बी सी. Here it should come day after tomorrow. Day is missing here. Day after tomorrow. So what day of the week will it be on day after tomorrow? So day after tomorrow is today plus 2. Okay, so that is Monday plus 2, so that will be Wednesday. Okay, so these are the questions जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं. सही सभी के सभी questions they have appeared in I will say in any of the exam. Now next question is, today is Thursday, the day after 59 days will be after 59, so that means 60th day. You have to tell me कि 60th day को कौन सा दिन होगा. Yes.
Okay, students. So very again, I will say very easy question. So these type of questions, see, otherwise you can also count 56, 57, 58, 59. And other method to solve these type of questions is to find a number of odd days. To find a number of odd days. Okay. So that can also be done, or the day after 59 days, that is 60th day. So you can try this. And sixth question. So I want answers from your side from the comment box. Yes, please tell me answer for question number third and sixth. Okay, Monday. Please cross check. Please cross check your answer. So that means I can say that is after 56 days repetition, I will say. Okay, so that is 7 weeks. Sorry, that is 1 week is 7 days. So repetition of 7 days. So after 56 days, again there will be Thursday. So that is I can say 8 weeks. So that means 57th day will be Thursday again. Yes or no? अगर 1 तारीख को थर्सडे है तो नेक्स्ट थर्सडे कब होगा? 8th को होगा. यस और नो? तो थर्सडे 57th हो जाएगा, फ्राइडे 58th, सैटरडे 59th, संडे आफ्टर 59 तो 60th. So Sunday will be, so your answer will be Sunday, not Monday. Yes, please cross check. Otherwise also you can see in 59 days how many I will say that is odd days are there. So that is 3 odd days. 3 odd days. Yes or no? So add 3 in Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yes or no, students? Yes. Jewel, Sai. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है यार. इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा ध्यान से करना है कि आफ्टर बोल रहा है उसने, मैं वैसे भी काउंट कर सकता हूं. यस और नो? तो अगर मैं थर्सडे से चलूं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, तो 4 दिन तो यही हो गए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. मंडे, ट्यूसडे,
देन वेडनेसडे 7th। ओके, तो 8th दोबारा कौन सा होएगा आपका? थर्सडे होगा। यस और नो? तो इसका मतलब आपका जो 57th होगा वो थर्सडे होगा, 58th फ्राइडे होगा, 59 सैटरडे और 60th संडे होगा। आफ्टर पूछा उसने, आफ्टर 59 डेज। ओके, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखनी, आफ्टर बिफोर ये ध्यान से देखना है क्या दिया हुआ है उसने। So which of the following is a leap year? Of course, divide by 400. So we can tell, so that will be 2800 only. Okay, so now do the sixth question. Do sixth question. Sixth, seventh, eighth. Sixth तो करो ही, eighth भी करो, सेवंथ करने की जरूरत नहीं है, करना चाहते हो तो कर सकते हो सेवंथ भी। सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, प्लीज ट्राई सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ क्वेश्चन। Next is, how many Mondays are there in a particular month of a particular year if the month ends on Wednesday? So we can't say that the so we can't tell the they have not mentioned us the year. So that can be ordinary year 365 or that can be leap year. Okay, and even we do not know the month name. Do not know the month name also. Okay, so how many Mondays are there if month ends on Wednesday? Month ends on Wednesday, so that can be 31st, that can be 30th, that can be 29th, that can be 28th. फेब की बात करूं या वैसे बात करूं तो यही चार पॉसिबिलिटी हैं, या तो 28 डेज हो सकते हैं, ठीक है, फेब में, या फिर को अगर लीप ईयर तो फेब में 29 होंगे। अदर देन फेब्रवरी देयर आर number of days can either be 30 or 31. So these four options can only be possible. If the month ends on Wednesday, then can you specify how many Mondays are there in a particular month? So we can't specify this. हम बता ही नहीं सकते इसके बारे में। Yes or no? तो या तो चार होंगे या पांच होंगे। इफ द मंथ एंड्स ऑन वेडनेसडे, सो लेट्स से अगर ये वेडनेसडे है, 31st को वेडनेसडे है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप काउंट कर सकते हो। तो इसका मतलब मंडे कब हुआ, इसके अकॉर्डिंग मंडे 29th को हुआ एक, उसके बाद 22nd को हुआ, उसके बाद कब हुआ 15th को हुआ, उसके बाद कब हुआ 8th को हुआ, उसके बाद 1st को हुआ। अगर ये 31 डेज का मंथ है, यस और नो? तो इसका मतलब सर पांच हो सकते हैं, पांच मंडे हो सकते हैं, यस और नो? अगर ये 30 का था तो इसका मतलब मंडे, फर्स्ट मंडे कब आया 28th, लास्ट मंडे, सॉरी लास्ट मंडे 29th, लास्ट मंडे 28th। तो सिमिलरली आप बता सकते हो नेक्स्ट मंडे, लास्ट आई कैन से दैट इज 21 14 7, yes or no? So that means 4 Mondays, 4 5, similarly you can count for 28 and 29। तो 4 और 5 तो इधर ही आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, so that is कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, तो आंसर इज कैन नॉट बी स्पेसिफाइड।
ओके, so let's try question number 7th also. Do question number 7th and 8th. Do question number 7th and 8th. Some question I have already discussed in the last class. The year next to 1990 which have the same calendar as that of the year 1990 is. Very easy question. Already we have done. 1990. How many odd days? Count the number of odd days. तो इसके लिए आज आपको ट्रिक भी दूंगा मैं. Trick is year 6 or 11 years. After 6 or 11 years in an ordinary year, the calendar repeats itself. अगर 99 आपको 1990 दिया हुआ है तो नेक्स्ट आंसर या तो 96 होगा या फिर इसमें 11 ऐड कर दो 2001. अब इनमें से सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन दिया हुआ दैट इज 1996. सो माय आंसर विल बी 1996. तो जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका आंसर हो जाएगा. यस और नो. और लीप ईयर के लिए अगर आपको लीप ईयर कोई दिया हुआ है कि लीप ईयर, हाँ जी, सेम कैलेंडर कब होगा और लीप ईयर अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ऑर्डिनरी ईयर दिया हुआ 1990 जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है, लीप ईयर है, तो ये रिपीट करता है अपने आप को, रिपीट्स आफ्टर 28 ईयर्स. यस और नो. क्लियर है फ्रेंड्स. तो ये ट्रिक तुम्हें ध्यान में रखें. 28 ऐड करके आपको आंसर बता देना ऑप्शन में से. अगर कोई लीप ईयर दिया हुआ है, लेट्स से 1988 दिया हुआ है, ठीक है, या 19 आई विल से 60 दिया हुआ 1960, तो सेम कैलेंडर ऑप्शन दिया हुआ है 1988, तो वो करेक्ट होगा. 28 ईयर्स ऐड करो और आंसर निकाल दो. बट कंडीशन क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं. अदरवाइज मेथड वही है, नंबर ऑफ ओड डेज ऐड करते रहो, काउंट करते रहो और बताओ. जहां पर 7 हो जाए, 14 हो जाए, 21 हो जाए, जहां पर मल्टीपल ऑफ 7 हो जाए वहां पर रुक जाओ. यस और नो. तो मेथड वही है जो कि लास्ट क्लास में तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूं. अदरवाइज अगर ऑप्शन एक ही दे रखा है, और ऐसे भी आप बता सकते हैं +6 +11 फॉर ऑर्डिनरी ईयर, फॉर लीप ईयर +28. कंडीशन इज ऑप्शन प्रेजेंट होना चाहिए. यस और नो. तो आंसर हो जाएगा इसका आपका 1996 हो जाएगा. इसे आप चेक भी कर सकते हैं यार, करना चाहते हो तो. 1998 1990 में नंबर ऑफ ऑड डेज 1, 91 में नंबर ऑफ ऑड डेज 1, 92 अगेन लीप ईयर, नंबर ऑफ ऑड डेज 2, 2134, 1993, so that is 1, 1994 1, 1995 1, ऐड करो 2 1 3 4 1 5 1 6 1 7. तो सेम कहां पर हो जाएगा अब 1996 में. यस और नो. यस और नो स्टूडेंट्स. यस और नो. यस जुवेल, साई, आई थिंक क्लियर होगा स्टूडेंट्स ये. तो डायरेक्ट यार ऐड भी कर सकते हो आप ना, ऐड करके पता कर लो वहां पर. तो 7 मेरे ऐड हो गए 1995 तक, तो 1996 में दोबारा से रिपीट होगा ये कैलेंडर. या मैंने डायरेक्टली अगर 6 और 11 ऐड कर दिया होता तो उससे ही बात बन जाती. ठीक है, अगर जल्दी से आंसर फाइंड आउट करना है. ओके, so this was the question. So answer was 1996. So let's try question number 8 now. A girl was born on 6 September 1970, which happened to be a Sunday. Her birthday would have fallen again on Sunday in. तो कौन से ईयर में ये बताओ. ठीक है, सेम डेट होगी, डेट तो सेम ही होगी, ईयर डिफरेंट होगा पर डे सेम होना चाहिए. सो दैट इज संडे अगेन.
तो अगेन इस क्वेश्चन को यार मैं दोबारा से कर सकता था वैसे ही। तो 1970 दोबारा से आपका क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है। सिक्स और 11 ईयर्स अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, वैसे देखने वाली बात है 6 और 11, बट इसमें क्या है कि मुझे डे भी दिया हुआ है। 6 और 11 ईयर्स अगर ऐड कर दूं तो 1976 वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, अगला है 1981। आंसर विल बी 1981। अदरवाइज यू कैन आल्सो डू 6 सितंबर 1970 क्या है इस दिन, संडे। 6 सितंबर 1971, हाँ जी, वन और डे आएगा। 1970 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, मंडे हो जाएगा। 1972, हाँ जी, 1971 क्या ऑर्डिनरी ईयर है, तो ट्यूसडे हो जाएगा। यस और नो, क्रॉस चेक करो इसे, ऐसे आप बना सकते हो, कर सकते हो सॉल्व। ओके तो ऐसे आप इसे कर सकते हो सारे के सारे को, बट आई थिंक ये वाला मेथड मैं ऑलरेडी तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूं लास्ट क्लासेस में। तो अब जो क्वेश्चन हम करेंगे वो डायरेक्टली करेंगे 6 और 11 ईयर्स से। तो मैं अब वो टेबल बनाने वाला नहीं हूं जैसे लास्ट क्वेश्चन में बनाया था कि नंबर ऑफ ऑड डेज हम करते रहे, ऐड करते रहे। तो अगर 6 और 11 ईयर्स का उसने एडिशन दे रखा है मुझे किसी ऑप्शन में, तो मैं उसको टिक कर दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, लीप ईयर के लिए 28 ईयर्स। So my answer will be 1981 for this question. Okay. So this is the question. So next question, please see now. Okay, so let's try 11th question in this assignment now. So let's try 11th question now. Okay, so let's do another question now. So that is 11th question. In a month of 31 days, a third Thursday falls on 16th. What will be the last day of the month? What will be the last day of the month? थर्ड थर्सडे अगर 16th को है तो दैट मींस 23rd ऐड करो, 7 ऐड करो, 30th, एंड लास्ट डे क्या हो गया 31st। तो 23rd को भी थर्सडे है, 30th को भी थर्सडे है, क्योंकि 31 डेज का मंथ है तो 31 को क्या होगा, सो दैट इज फ्राइडे होगा। व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द मंथ। नाउ मुझे बताना है कि ये फ्राइडे कौन सा फ्राइडे है।
मुझे ये भी चेक करना है क्योंकि एक ऑप्शन नन ऑफ दीज दे रखा है। तो अगर 31st को फ्राइडे था तो उससे पहले 24th को होगा, उससे पहले 17th को होगा, उससे पहले 10th को होगा, उससे पहले 3rd को होगा। सो दिस इज फर्स्ट फ्राइडे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो फिफ्थ फ्राइडे आएगा 31st को, लास्ट डे ऑफ द मंथ। यस और नो स्टूडेंट्स? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, ठीक है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन था, मैंने 6 और 11 ईयर्स और लीप ईयर के लिए 28 ईयर्स की जो ट्रिक बताई है उसे यूज करो आप, ठीक है। बट ये चेक करने वाली बात है कि ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ठीक है। अदरवाइज ऑड डेज का मेथड तो है ही, जो कि हम लास्ट टाइम भी कर चुके हैं, सेकेंड क्लास में भी और फर्स्ट क्लास में भी कर चुके हैं। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नाउ। सो 12th क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं यार लास्ट क्लास में, आई थिंक फर्स्ट क्लास में ही कर चुके हैं, हाँ जी। नेक्स्ट सम क्वेश्चंस हैं और यार, अगर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 13, ये भी एक एग्जाम में आया हुआ है। Republic Day of India in 1980 falls on Saturday. X was born on 3rd March 1980 and Y older to X by 4 days, then Y's birthday fell on. Yes. Yes, answer from your side. Republic Day of India in 1980. So that is 26th Jan 1980. This is given to me. And this day is a Saturday for us. X was born on 3rd March 1980. तो x का बोर्न हुआ है 3 मार्च 1980 को एंड y इज ओल्डर टू x बाय 4 डेज, 4 दिन बड़ा है। देन y's बर्थडे फेल ऑन, यार ऑड डेज काउंट करना स्टार्ट करो। जनवरी में कितने ऑड डेज हैं? 1980 एक लीप ईयर है, तो फेब कितने दिन की होगी? 29। जैन में कितने डेज बचे होंगे? यस और नो? सो दैट इज 5, 27, 28, 29, 30, 31, 5 फेब में 29, मार्च 3rd को तो मुझे निकालना ही है ना, एक्स का निकालना है मुझे, तो 3 ऑड डेज तो ये हो गए। तो दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए? 37। अब 37 को भी अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कुछ वीक्स आएंगे, 5 वीक्स आएंगे रेपिटेशन। सो दैट मीन्स 2 ऑड डेज। तो 37 डेज में भी 2 ऑड डेज हैं, तो इसका मतलब सैटरडे से आगे अगर 2 दिन चलूं, सैटरडे था, इसमें 2 दिन अगर ऐड कर दूं, संडे मंडे, तो इसका मतलब 3 मार्च 1980 को क्या था? मंडे था। यस और नो? तो एक्स इसका मतलब मंडे को बोर्न हुआ था, मंडे को बर्थ हुआ था एक्स का। तो वाई बोला है कि वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है by 4 days. Y is older to x by 4 days. Okay, then add 4, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. तो इसका मतलब क्या होगा उस दिन? Y का बर्थ कब हुआ होगा? फ्राइडे। सो दैट इज 7th मार्च, हम कह सकते हैं 7 मार्च 1980। तो Y पैदा कब हुआ था? Y का बर्थ हुआ था फ्राइडे को, सो आंसर विल बी फ्राइडे। स्टूडेंट्स ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन।
ओके, सो लेट्स सी अदर क्वेश्चंस आल्सो। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारी ट्रिक से हो जाएंगे या नहीं। लेट्स डू 20th क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है यार। 1977 में एक दिन दे रखा है 18 सितंबर, संडे था। अब कपल वाज मैरिड ऑन दिस डेट, एक कपल की मैरिज हुई थी इस डेट पर। हाउ मैनी मैरिज एनिवर्सरी वुड फॉल इन संडे इन द नेक्स्ट 15 इयर्स। काउंट भी कर सकते हो, अदरवाइज ऑर्डिनरी ईयर है तो रेपिटेशन कब होगी, दैट इज 6 इयर्स एंड 11 इयर्स। ऑर्डिनरी ईयर है 1977, 77 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो इसका मतलब 1983 में रेपिटेशन हुई होगी, और कब हुई होगी, 1988 में। सेम डे रहा होगा। यस और नो? हाँ जी, इन द नेक्स्ट 15 ईयर, सो दैट इज अप टू 1992। तो 1983, 1982, तो कितनी मैरिज एनिवर्सरी संडे को ही आई होंगी नेक्स्ट 15 ईयर में? दो। क्लियर है या नहीं है? ओके, सो आई थिंक फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। यस और नो? Okay, so let's proceed with some more questions now. So this type, I will say 22nd, 23rd, 24th, we have already done. So I will upload this assignment and you can practice these questions. Yes, do this question 36th now. Which year will have the same calendar as that of 2012? Now 2012 is again it's a leap year now. So leap year repeats after 28 years. So answer will be 2040. So directly answer we can tell. You can tell the answer directly for these questions using these tricks. 6, 11 for ordinary, repetition after 6 and 11 years, and after 28 years, so that is for leap years. Okay, so you can do the, yes, please try 39th question. And okay, so please try 39th question. If 1st January 2001 was Monday, then what day of the week was it on 31st December 2001? So again, friend, this type of question we have already done. 2001 is again an ordinary year. So first day and last day of an ordinary year is same. तो अगर 1 जनवरी 2001 को मंडे था, तो 31 दिसंबर 2001 को भी क्या रहा होगा? मंडे रहा होगा। ओके,
similarly, you can do this question also. 41st, first day of a leap year is Wednesday. Then what day of the week was it on 31st December in that year? अगर leap year है तो same day नहीं होगा last day को. So day will be, you will add one, so that will be Thursday. That will be Thursday. Again, these type of questions oftenly asked in the exam. Okay. Yes, please try 42nd question now. Please try 42nd question now. 42nd and 45th. Please try 42nd and 45th. 42, 45, 46. Please try these three questions now. Please try these three questions now. 42, 45, 46. Yes, count the number of days. Very easy question. National Day of a country was celebrated on fourth Saturday of a month. Then find the date of celebration when the first day of that month is Tuesday. If Republic Day was celebrated in 1996 on Friday, then on which day in 2000 Independence Day was celebrated? Yes, answer from your side. C है no. 26th January 2011. सर ऑर्डिनरी ईयर है सबसे पहले तो. जैन से सितंबर में जाना है. So that is you have to just sum up the number of days. So Jan 26th, that is to be included. 26, 27, 28, 29, 30, 31. So that is 6 days. Feb 2011 ordinary year 28 only. March 31. April 30. May 31. June 30. July 31. August 31. September 23. So just add these. 31, how many times? 1, 2, 3, 4. So 4, 1, 4, 4, 3, the 12. 124. 30, how many times? 1, 2. So that is 60. Then you are having 23 plus 6, 29. 29 plus 28. Add this 9, 8, 7. 9, 8, 17 or 4, 21. 2 to 4, 6, 10. 10 to 12, 12 to 14. 1 or 1, 2. So that is 241 days. 241 days. So your answer will be 241. ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया एग्जाम्स में. नंबर ऑफ डेज ही काउंट करने हैं आपको. इजी क्वेश्चन है पर क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो हमने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को. ओके. सो दिस वाज 42nd. सो प्लीज ट्राई 45th एंड 46th. Again very easy question. Yes friends.
तो आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सो 241 आई थिंक यू हैव मस्ट हैव काउंटेड। नेशनल डे सेलिब्रेटेड of a country was celebrated on fourth Saturday of a month. Then find the date of celebration. अगर फर्स्ट डे दे रखा है उस मंथ का ट्यूसडे, अगर 1 तारीख को ट्यूसडे है, एक को अगर ट्यूसडे है तो फर्स्ट सैटरडे निकाल सकते हैं ना यार हम। एक को ट्यूसडे हो गया, दो को वेडनेसडे, तीन को थर्सडे, चार को फ्राइडे, पांच को सैटरडे। तो फर्स्ट सैटरडे आया फिफ्थ को, नेक्स्ट आएगा 12th को, उससे नेक्स्ट आएगा 19th को, उससे नेक्स्ट आएगा 26th। उससे आगे तो जा ही नहीं सकते हम। ठीक है, तो कितने सैटरडे आए? सो दैट इज आई विल से 1 2 3 4, तो 3 ही सैटरडे हैं उस मंथ में, सॉरी 4 ही हैं। और फोर्थ सैटरडे को नेशनल डे वो सेलिब्रेट कर रहा है, सो दैट इज 26th। सो माय आंसर विल बी 26th ओनली। फोर्थ सैटरडे को बताना है कौन सा डेट है, सो दैट इज 26th। Okay, so do the last question also. If Republic Day was celebrated in 1996 on Friday, then which day in 2000 Independence Day was celebrated? ठीक है, तो रेफरेंस उसने दे दिया मुझे एक डे। Okay, so let's do 46th question now. अगेन मुझे इसमें रेफरेंस दिया हुआ है यार, अब कैसे भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। अगर रिपब्लिक डे 1996 में, इसका मतलब 26 जैन 1996 को अगर फ्राइडे था, तो मुझे बताना है 15 अगस्त 2000 को क्या था। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है जिसमें मुझे रेफरेंस डे दिया हुआ है। या तो ये हो सकता है कि मैं 1996 वाला जो ईयर है उसी में मैं 15 अगस्त में चला जाऊं और फिर मैं वहां उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज ऐड करता रहूं। एक तरीका तो ये है। एक तरीका है कि मैं 26 जैन 2000 को डे देख लूं, देन उसके आगे मैं नंबर ऑफ ऑड डेज ऐड कर लूं, वो भी तरीका है। तो जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ओके, सो 96 एक लीप ईयर है, तो सिमिलरली 97 में क्या हो जाएगा, 26 जैन सेम डे को सैटरडे संडे हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या आएगा 29 फेब भी आएगा, 29 फेब 1996 आएगा। यस और नो, क्योंकि 1996 एक लीप ईयर है। तो सिमिलरली 26 जनवरी 1998 को मंडे हो जाएगा, 1999 को क्या हो जाएगा 26 जनवरी, ट्यूसडे हो जाएगा, क्योंकि 1998 ऑर्डिनरी ईयर है। 26 जैन 2000 को क्या हो जाएगा, दैट इज वेडनेसडे हो जाएगा। यस और नो? देन मुझे अब इसके आगे प्रोसीड करना है। तो वेडनेसडे तो है ही, अब जनवरी में कितने डेज बचे हैं, दैट इज 5, 31 का होता है जनवरी,
27, 28, 29, 30, 31, जनवरी 5 days. 2000 में चल रहा हूँ. 2000 again is a century leap year divisible by 400. तो 29 days की होगी फेब. जैन, फेब, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 15. तो ये सारे डेज ऐड करो यार. तो नंबर ऑफ वॉट डेज बताओ. वो वॉट डेज वेडनेसडे में ऐड करो और बता दो डे. यस और नो. ऐड करो. 5, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 15. चेक करो 31 कितनी बार आ रहा है. 1, 2, 3. 31 3 द 93. 30 कितने टाइम्स आ रहा है. 1, 2. ओके. एंड 15 कितनी बार आ रहा है. 60. 60 प्लस 15 कितना हो गया है. 60 प्लस 15 75. 75 प्लस 5 कितना हो गया है. 80. 80 लिख दो यहाँ पर. और यहाँ पर फेब्रुवरी कितना. 29. 9 और 3 12. 9 और 1 10. 10 और 8 18. 18 और 2 20. That is 202. So I think you can count the number of odd days now. So divide by 7 and you will get your answer. Two zero two when it divisible by 7. 7 to the 14. 6. 7 8 the 56. So that is 6. 6 odd days. So add 6 to Wednesday. So Wednesday plus 6 odd days. Wednesday के बाद क्या आएगा. Thursday आएगा. Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. तो कौन सा होगा आपका आंसर. विल बी दैट इज आई विल से ट्यूसडे. Okay, so I think this question was again clear to you. So answer was option B for this question. So that is Tuesday. Okay, so let's do 48th and 49th question also. 48th and 49th. Yes, please try 48th and 49th. सैटरडे था यार इस दिन 17 दिसंबर 1899 को. मैं बताओ 1901 में 22 दिसंबर को क्या होगा. वेरी इजी क्वेश्चन अगेन आई विल से. So similarly 49th also you can do.
So let's try the last two questions. सैटरडे है 27 दिसंबर 1899 को, तो 22 दिसंबर 1901 को क्या होगा? सी है नो 1899 अगेन देन 1900 आएगा बीच में, ठीक है। तो 22 का अगर जाना है तो लेट्स चेंज द रेफरेंस डेट आल्सो। तो 18th संडे 18th 19 20 21 20 add 5 add 4 I will say 4 days, that is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday। इसका मतलब थर्सडे हो गया 22 दिसंबर 1899। यस और नो? सिमिलरली 22 दिसंबर 1900, 22 दिसंबर 1900 को क्या हो जाएगा? अगेन बीच में क्या आएगा? फेब 1900 आएगा, ठीक है। एंड 1900 इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है, नॉट अ सेंचुरी लीप ईयर बिकॉज नॉट डिविजिबल बाय 400, so you will add only one, okay, so that will be Friday, so one odd day I will say, that is Friday। so next is 22 December 1901, ठीक है। इसमें बीच में क्या आ जाएगा? फेब 1901, 1901 इज अगेन अ ऑर्डिनरी ईयर, सॉरी ऑर्डिनरी ईयर, तो वन ऑड डे आई विल ऐड, सो आंसर विल बी सैटरडे। इसका मतलब 22 दिसंबर 1901 को सैटरडे था, आंसर वाज ऑप्शन बी। क्लियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन? Okay, now do the last question. So that is 49th question for us. 27th March 1995 को मंडे था, तो 1st नवंबर 1994 को क्या होगा? This is the question. पीछे चलना है इसमें, you have to go, I will say backwards. तो अगर मंडे है यार, एक बात बताओ, अगर मंडे है 27th मार्च 1995 को, ऑड डेज काउंट करना स्टार्ट करो, पीछे चलना है इसमें, सबट्रैक्ट करना है मुझे इसमें से। 27 मार्च को मंडे दे दिया, तो इसका मतलब मार्च के कितने दिन बचे हुए हैं इसमें? क्यों, कौन कौन से मंथ आने वाले? मार्च 1995 आने वाला है, फेब 1995 आने वाला है, जनवरी 1995, दिसंबर 1995 और नवंबर, सॉरी 1994 आने वाला है दिसंबर, एंड नवंबर आल्सो 1994, यही आने वाले हैं। मार्च के कितने दिन लूंगा मैं? 26 लूंगा, 27 का तो दे ही रखा है। फेब के कितने लूंगा? 28 ही लेने पड़ेंगे, 95 अगेन एन ऑर्डिनरी ईयर। जैन में 31, दिसंबर 31 94, नवंबर में क्योंकि फर्स्ट को मुझे निकालना है तो मुझे 30 के 30 डेज लेने पड़ेंगे, फर्स्ट को निकालना है ना मुझे, तो फर्स्ट भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा। अदर देन 29 आई हैव टू कंसीडर फर्स्ट आल्सो, तो 30 लेने पड़ेंगे, ऐड करो इन सभी को, 31 31 62, 28 और 26 इज हाउ मच? 54, 30, 4 और 2 6 6 5 11, 11 और 3 14, 146 days, divide by 7, how many weeks and how many, I will say number of odd days, 7 to the 14, so that is 6 odd days। so that means मंडे में अगर मैं 6 ऑड डेज अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बनेगा? कौन सा दिन आएगा? संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, दैट इज ट्यूसडे, so answer will be Tuesday। तो 1st नवंबर 1994 को क्या था? so that is
ट्यूसडे। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे आपको। सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे। So friends, this was, I will say, the second assignment, and this I will also upload in the description of this video, and you can access this assignment and can solve the other questions also that have appeared in various exams. So these were, I will say, some of the other questions also that we have discussed. So calendar from my side is over now. So the questions that have appeared in various exam I have already discussed. Okay, so next time I will meet you with some new topic of reasoning. So till then, keep watching your video. Okay, and keep preparing. Thanks once again.